Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. We are currently coming out with the videos for class 8th mathematics. We are following the DAV textbook for this particular channel. In our earlier videos, you would have seen the chapters linear equations in one variable, and after that we did the chapter number 7, which was algebraic expressions. In today's class, we will be doing the HOTS and the brain teasers for the chapter 3, exponents and radicals. Hope you would enjoy solving the questions along with us. Let's get started. So this is the first question. (625) to the power -1/2 whole to the power of 2. तो बच्चों, जब ब्रैकेट के बाहर आपको ये एक पावर है और ये एक पावर है, तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसको हम क्या करेंगे? 625 टू द पावर -1/2 इंटू 2. ये 2 और 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 625 टू द पावर ऑफ -1. -1 है तो बच्चों ये हमें रेसिप्रोकल कर देना है, 625 को नीचे ले आना है. सो दिस इज द आंसर. Okay, we'll go to the next question. 5 to the power x is equal to 1. Find the value of x. हमें ये पता है कि anything to the power of 0 becomes 1. Okay, so if I put 5 to the power of 0, it will become 1. Hence, x is equal to 0. Answer. Okay, let's go to the next. Find the value of 27 to the power 1/3 plus 64 to the power of 1/3 का होल्स का स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 27 क्या है? 3 इंटू 9. 9 क्या है? 3 इंटू 3. तो 27 इज 3 क्यूब टू द पावर 1/3 प्लस 4 इंटू 16. 16 इज नथिंग बट 4 स्क्वायर टू द पावर 1/3. ठीक, इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 प्लस 4 3 इंटू 1/3 स्क्वायर. ये बेटा क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 3 प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. दिस इज द आंसर. Okay, let's go to the next one. We have to do 4.25 into 10 to the power -7. इज इक्वल टू, हमें देखो -7 है तो आप इसको लिख सकते हो 4.25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7. अब हमें 7 के बाद डेसिमल लगाना है. अभी यहाँ पे है, इसके बाद 1 यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू 4 2 5. पहला आपने ये काउंट कर लिया 1, 1 डालो 0 2 3 4 5 6. ये हो गया आपको 7. यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो, ये हो गया. दिस इज इक्वल टू 0. कितने 0? 6 0 और 1 4 हो गया. 1 2 3 4 5 6 4 2 5. दिस इज द आंसर. ओके, लेट्स सेव इट. Let's go to the next one. Find the value of
81 टू द पावर -3/4। बच्चों 81 क्या है? 3 इंटू 27 इज 81 -3/4। ठीक है, इसको करोगे 3 इंटू 9 -3/4। इसको ऐसे लिख दोगे 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू -3/4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ -3 is equal to 1/3 to the power of 3 is equal to 1/27. This is the answer. Let's do the next one. 5 into 16 to the power of 3/4 is equal to 5 into 2 to the power 4. 2 to the power 1 is equal to 2. 2 to the power 2 is equal to 4. 2 cube is equal to 8. 2 to the power 4 is equal to 16. 2 to the power 5 is equal to 32. 32 into 32 is equal to 1024, which is nothing but 2 to the power of 10. Chalo, is equal to 2 to the power 4 into 3/4 is equal to 5 into 2 to the power 4 into 3/4. ये 4 और 4 कट गया, is equal to 5 into 2 cube is equal to 5 into 8 is equal to 40. This is the answer. Okay. Let's go to the next one. So we have 0.0 1 2 3 4 zeros है ना, 0.000064 इंटू 5/6। इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने पहले क्या किया था, इस वाली स्लाइड में क्या किया था, हमने क्या बताया था, 2 to the power 5 बताया था ना आपको। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 to the power 5 is equal to 32 and 2 to the power 6 is equal to 2 into 32 is equal to 64। ठीक है, तो 64 को हम लिखेंगे 2 to the power 6 और इसको हम लिखेंगे 64/1। 1 2 3 4 5 6, ये 6 का, ये 4 का। ठीक, इसको टोटल को 5/6 इज इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 10 to the power -6 इंटू 5/6। अब इसको खोलेंगे, 2 to the power 6 इंटू 5/6 इंटू 10 to the power of -6 इंटू 5/6। 6 कट जाएगा, आ जाएगा 2 to the power of 5 इंटू 10 to the power of -5। इसको लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। अब 2 डेसिमल इधर आ गए, 3 जीरो लगा देंगे, 0.00032। दिस इज द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इफ 3 to the power x minus 1 is equal to 1/27। 27 को लिखो 3/3, 3 to the power 3। इसको ऊपर ले जाओ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 3 to the power of -3, 3 to the power of x minus 1। बेस सेम है, implies that x to the power x in -1 is equal to -3। -1 को इधर ले जाओ, x is equal to -2। This is the answer. Okay, let's go to the next one. So अभी हमने किया था 64 इज इक्वल टू 2 to the power 6। ठीक है, अब 216 को आप देखो, ये आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और आपका 6 इंटू 36, 6 6 36, 3 ऊपर
6 3 द 18 और 3 216, सो 216 is 6 का क्यूब। ओके, ये हो गया 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 512। 512 इसको जरा आप 3 से देखो, ये 3 से तो डिवाइजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड करो। 2 इंटू ये आपके पास आएगा 256, जिसको आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 128। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64। ठीक है, 2 इंटू 64 हमने देखा 2 टू द पावर ऑफ 6 है, और यहाँ पे आपके पास 3 पावर आ रही है, तो ये कितना हो गया आपका 512 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 64 को लिखते हैं 2 टू द पावर ऑफ 6, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं डॉट लिख रहा हूँ वहाँ पे, -1/6 इंटू 216 को हम लिखेंगे 6 का क्यूब इंटू -1/3 इंटू 81 को लिखेंगे 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1/4। इसको पूरे को डिवाइड करेंगे। 512 को लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 9, साथ में मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, इंटू 16 को आप लिखोगे 2 टू द पावर ऑफ 2 क्यूब इज 8 एंड 2 टू द पावर 4 इज 16। 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4, और 9 है आपका 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा -1/2 से। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये 6 और ये 6 कट रहा है, ये 3 और ये 3 कट रहा है, ये 4 और ये 4 कट रहा है, ये 3 इस पे जाएगा 3। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, ये 4, ये 4 और ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे माइनस का साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे -3 का साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन का ध्यान रखना है। तो अब क्या पावर्स बनी, 2 टू द पावर ऑफ -1 इंटू 6 टू द पावर ऑफ -1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, बहुत नीचे क्या आपके पास है 2 टू द पावर ऑफ -3, उसके बाद क्या है आपके पास 2 टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, 1 है ना, हाँ, 2 टू द पावर ऑफ 1 और 3 की पावर है -1। ठीक है, 3 की पावर है -1, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, और इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लो, तो इसका आपके पास आ गया 2 टू द पावर -1, 6 टू द पावर ऑफ -1, 3 टू द पावर ऑफ 2, और नीचे आपके पास आ गया 2 टू द पावर ऑफ -2। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स विल ऐड अप, तो -3 + 1 इज -2। अब आप इसको ऊपर ले जाओ, तो आपके पास आ गया 2 टू द पावर ऑफ -1, 2 टू द पावर ऑफ 2, उसके बाद आएगा 6 टू द पावर ऑफ -1 एंड 3 स्क्वायर। ये आपका बन गया -1 + 2 विल बिकम +1, 2 टू द पावर ऑफ 1, 3 स्क्वायर। 6 की -1 है, नीचे ले जाओ 6 और लिख दो आप 2 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। ये 2 और ये 2 काट दो, और 3 को फिर ऊपर ले जाओ, या 3 स्क्वायर अपॉन 3 कर दो, विच इज 3। सो आंसर इज 3। सिंपल था, मुझे बढ़िया लगा ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स सेव दिस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 3 की पावर लिखनी थी मेरे ख्याल से, दैट वी विल राइट हियर, यू विल हैव 3, हियर ऑल्सो you will have 3। okay, so now let's do this। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर ऑफ 4/3, y टू द पावर ऑफ 1/3। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं xy 7 टू द पावर ऑफ -1/3, ऊपर ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास -4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
4/3 और -4 क्या हो जाएगा, x to the power of -16/3. y 1/3 and -4 will become y -4/3. x to the power -1/3 and -4, so x to the power of 4/3. y to the power of -7/3, and then I have minus and minus plus, so 7/3 into 4 is y to the power of 28/3. ओके, अब x की पावर्स को ऐड कर दो, y की पावर्स को ऐड कर दो, इज इक्वल टू x -16/3 प्लस 4/3, y टू द पावर ऑफ -4/3 प्लस 28/3. ठीक है, अब आपको ये ऐड करना है, तो ये बनेगा x टू द पावर ऑफ -12/3, y टू द पावर ऑफ 24/3. ठीक है, अब आप इनको कैंसिल कर दो, x टू द पावर ऑफ -4, y टू द पावर ऑफ 8. इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, y टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4. दिस इज द आंसर. These two questions मतलब देखने से लगता है कि टफ है, बट अगर आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखोगे, ये 64, 216, 512, अगर ये चीज़ें याद रखोगे तो मुफ्त के सवाल है, मुफ्त के नंबर हैं ये. मतलब देख के, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो इसको क्वेश्चन को देख के 35 बच्चे डर जाएंगे, 10 बच्चे होंगे जो करेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है गोता खा जाए, 5 बच्चे एक्सट्रीमली शार्प, उनको क्या होगा, उनमें डिफरेंस क्या है, उन्होंने इन चीज़ों को रटा होगा. 6 तो 64 क्या है, 6 का क्यूब क्या है, 5 और 2 क्या है. वो तब होता है जब आपकी टेबल्स आपकी मुट्ठी में है, जब आपकी टेबल्स बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो होता है प्रैक्टिस से. तो आपको एक तरह के क्वेश्चन करते रहना है. अपने आप को मोबाइल से दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है. जब मैथ्स में ही अगर आप, इफ यू विल ईट, ड्रिंक एंड स्लीप विद मैथ्स, that is the time when you will get perfection, and you have to do that. It's very simple and it is very scoring. Okay, so let's go to the next one. In my earlier videos I was first doing the worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, then I got some feedback that you also attempt the brain teasers and the HOTS. So on this chapter I am already late into the session this time. स्कूल में आप लोगों के काफ़ी चैप्टर्स हो चुके होंगे, सो आई थॉट फॉर माई वीडियो टू ब्रिंग वैल्यू टू यू, आई शुड, irrespective of the sequence, I should go and try giving you the solutions to possibly the areas where you want more help. Okay, so with that thought process, I have brought the lecture on brain teasers and the HOTS this time. Coming away from my normal routine of worksheet 1, worksheet 2, and likewise. Okay, let's do this question. 3 into 16 is 2 to the power of 4 into 3/4. ये आपका कट गया, is equal to 3 into 2 cube. What is 2 cube? 3 into 8. What is that? 24. Okay, तो दो लाइन का क्वेश्चन है ये, 2 लाइन का क्वेश्चन है, और इसको कहाँ पे डाला हुआ है इन्होंने, HOTS में. Okay, let's go to the next one. 2 into 27 minus 2/3. 2 into 3 cube into minus 3 कट गया, 3 to the power -2, नीचे ले जाओ, 2/3 square, 2/9. This is the answer. Okay, we go to the next one. टू इंटू 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, 3/2 इंटू 9 को फिर क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर -1/2. ठीक है, ये 2 और ये 2 काट दो, ये 2 और ये 2 काट दो, -1 का ध्यान रखना, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 to the power of -1.
base same, exponents add up. 2 into 3 to the power of 3 minus 1. 2 into 3 square. 2 into 9. 18. This is the answer. Okay, let's go to the next one. 5 square is equal to 25. 12 square is equal to 144. This is the Pythagoras theorem. ठीक है ना, ये तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है. इज इक्वल टू 169. वही देख लो ऐसे 144, 25, 961. ओके, 1/2. What is 169? 13 square. 13 is the answer. Okay, let's go to the next one. सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको देखना है कि प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है. अगर ये होता 2 to the power x, 2 to the power x, 2 to the power x, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता कि दिस इज 2 to the power x plus x plus x. ओके, which would have become 2 to the power of 3x. Unlike that, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 to the power of x plus 2 to the power x plus 2 to the power of x, which is equal to 2 to the power x कॉमन ले लूँ, 1 plus 1 plus 1. That has been given equal to 192. So 3 times 2 to the power x is equal to 192. 192 के फैक्टर्स कर लेते हैं. ओके, 2, 9 पे 18, 6, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 and 3. So this is equal to 192 is equal to 2 to the power of 6 into 3, which is equal to given as 2 to the power of x into 3. 3 काट दो. 2 to the power of x is equal to 2 to the power of 6, implies that x is equal to 6. This is the answer. Let's go to the next question. 8 to the power of 255 is equal to 32 to the power of x. सारे जो है ये 2 के मल्टीपल्स है. 8 is equal to 2 क्यूब, और हमने क्या कहा था 8 into 2 is 16 is equal to 2 to the power of 4. 16 into 2 is 32 is equal to 2 to the power of 5. ठीक है, 64 is equal to 2 to the power of 6. चलो हम यहीं पे रुकते हैं. 8 को लिखेंगे 2 क्यूब. ठीक है, बाहर आएगा 255 is equal to 2 to the power of 5 x. ठीक है, अब बेस आपकी सेम है, तो 3 into 255 is equal to 5x. x is equal to 255 into 3 अपॉन 5. ये आपका गया 5 पे, 5 1 पे into 3 is equal to 153. This is the answer. ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं. (153) is the answer. Okay. इसको सेव कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सो
2 to the power of 2x plus 2 is equal to 4 to the power of 2x minus 1. 4 को लिख दो 2 to the power of 2 और इसके बाहर है 2x minus 1, 2 to the power of 2x plus 2. ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना ही है. 2 to the power of 4x minus 2 और ये है आपका 2 to the power of 2x plus 2. Bases are same. Okay, so 2x plus 2 is equal to 4x minus 2. Okay, x की टर्म्स को इधर ले जाओ, कॉन्स्टेंट्स को इधर ले आओ. 4 is equal to 2x, 4x minus 2x है ना, so 2x is equal to 4, x is equal to 2. This is the answer. Next is very simple. एक मिनट के सवाल है. 4 to the power of x minus 4 to the power of x minus 1 is equal to 24. ठीक है, अब कुछ भी अगर ये 4 to the power of x है तो 4 into 4 into 4 x टाइम्स है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 4 into 4 into x टाइम्स. ठीक है ना, minus 4x minus 1 is equal to 24 implies that 4 मैंने कॉमन ले लिया और लिख दिया 4x minus 1 minus 4x minus 1 is equal to 24. ठीक है, अब आप 4x minus 1 कॉमन ले लो. 4 minus 1 is equal to 24. 4 to the power of x minus 1 into 3 is equal to 24 implies that 4 to the power x minus 1 is equal to 8 implies that 2 to the power of 2 into x minus 1 is equal to 8. 8 is equal to 2 cube. ठीक है, bases are same implies that इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 को x से भी करना है, x minus 1 से भी करना है. 2x minus 2 is equal to 3. ठीक है, ये 2 को इधर ले जाओ. 2x is equal to 5, x is equal to 5 upon 2. This is the answer. Okay, let's go to the next one. Let's go to the next one. Okay, so this is the HOTS. 6 to the power of minus 1. सिक्स टू द पावर माइनस 1 को क्या लिखोगे, 1/6 माइनस 8 टू द पावर माइनस 1 को लिख देंगे 1/8. ठीक है, इसको लिख दो -1 प्लस 2 टू द पावर -1 को लिख दोगे 1/2 माइनस 1/3 टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो. 8 और 6 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 24. 6 into 4 और 8 into 3. ठीक है, ये पूरा -1 प्लस 2 और 3 का आ गया आपके पास 6. 2 into 3 minus 3 into 2 -1 is equal to 1/24 to the power of -1 plus 1/6 to the power of -1. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. 24 plus 6 is equal to 30. Okay, this is the answer. Okay, let's go to the next one. I think this is the last question, correct? So we have 3 to the power of x minus 1 is equal to 9. इसको हम लिख सकते हैं 3 square. ठीक है, implies that x minus 1 is equal to 2, implies that x is equal to 3. ठीक है, 4 to the power of y plus 2 is equal to 64. 64 क्या है आपका, 4 into 4 is 16. 16 into 4 is equal to 64. ठीक है, तो 4 क्यूब है.
4 cube. Now bases are same, equate the exponents. Y plus 2 is equal to 3 implies that y is equal to 2 को इधर ले जाओ, 2 is equal to y, 3 minus 2 is equal to 1. ठीक है, so x is equal to 3, y is equal to 1. हमें क्या निकालना है? y upon x minus x upon y. So y upon x is 1 upon 3 minus x is 3 upon 1 is equal to LCM ले लो 3, 1 into 3 minus 3 into 3 9 is equal to minus 8 upon 3. तो चेक कर लेते हैं. Minus 8 upon 3. Okay, so this is the answer. Okay, so with this we have come to the end of this particular class. Okay, with this we have come to the end of this particular class. Thanks for your time. If you have liked the video, please subscribe the channel, share the link with your friends. Also give us your valuable comments to improve the quality of the videos and the content that we deliver. In case you want some particular chapter to be covered earlier or some tests to be covered earlier, please let us know. We will try to accommodate the same. We'll see you in the next class with more interesting questions. Thank you so much.